Welcome everyone, welcome to Clarity for Sure. Hope you guys are doing well and welcome to another session of ADI examination 2025. So once again we are going to cover a very important topic in this session, and that is micro insurance, right? So as you all know, this topic is very important as far as your ADI examination is concerned, because this topic appeared in the newspaper, frequently appeared in the newspaper for the multiple reasons, right? As you can see here, this screenshot has been taken from the Economic Times. It tells कि micro policies keep India's push for insurance coverage on track, which means India's push for universal insurance coverage by the year 2047 is being propelled by the rapid adoption of micro insurance policies, which are helping drive penetration especially in undeserved and low income segments, right? It is basically telling कि किस तरह से जो है माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीज हेल्प कर रही है टू अचीव इंडिया इट्स गोल ऑफ यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज बाय द ईयर 2047, right? So this was all about the news, and there are multiple reasons for which this news this topic appeared in the newspaper. That's why we are covering this particular topic, right? So first we'll understand what is micro insurance, and after that we'll cover each and every entity of this particular topic, that is micro insurance agents, ADI regulation as far as the micro insurance is concerned, and schemes related to micro insurance in India, right? So what do you mean by micro insurance? See, micro insurance is also a type of insurance, right? But these are basically designed for the vulnerable, economically vulnerable and economically weaker sections, right? ऐसे लोग जो afford नहीं कर पाते, right? Those who can't afford the traditional plans, these are for them, right? And these are especially targeted group of this particular insurance is basically economically weaker sections and low income groups or families, right? Especially in semi urban and rural areas. Definition देख लेते हैं हम लोग. Micro insurance refers to insurance product designed specifically for low income individual and families who are typically excluded from the traditional insurance market due to affordability and accessibility issues. Affordability और accessibility issues के कारण जो है वो traditional plans को afford नहीं कर पाते because of their economically backwardness, right? So these policies are for them. Definition as per ADI. ADI के द्वारा दी गई definition क्या है according to ADI? That is micro insurance regulation 2015. Micro insurance is a general or life insurance policy, that means traditional plan है with low premiums and low coverage, जिनकी premiums काफ़ी कम होती है और जिनकी coverage भी काफ़ी कम होती है, tailored to meet the needs of economically weaker sections, जिनको डिज़ाइन की गई है ताकि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की नीड को फुलफिल कर पाए, राइट? स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, एज आई सेड, राइट? सो फीचर्स पे चलते. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस? टारगेट सेगमेंट, इनकी जो टारगेट सेगमेंट है, राइट, वो बेसिकली लो इनकम ग्रुप्स है, ऐसे ग्रुप और फैमिलीज जो जिनका इनकम काफ़ी कम है, राइट? रूरल पॉपुलेशन और सेमी अर्बन पॉपुलेशंस, इनफॉर्मल वर्कर्स, बेसिकली गिग वर्कर्स, राइट? उनके लिए ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम्स है, माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स है, राइट? प्रीमियम जो होती है उनकी काफ़ी कम होती है बिकॉज अफोर्डेबल मंथली और ईयरली पेमेंट्स, बिकॉज ये मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए डिज़ाइन की हुई है, राइट? नेक्स्ट इज आवर सम एश्योर्ड कवरेज. कैप लिमिट जो एडाई के द्वारा लगाई गई है, दैट इज 50,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस एज पर एडाई गाइडलाइंस. डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स, माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स ये द्वारा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, राइट? सो दिस टॉपिक विल कवर लेटर, ठीक है? ये टॉपिक भी हम लोग थोरोली कवर करेंगे. दैट इज एनजीओज. माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स कौन हो सकते हैं? एनजीओज हो सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकती है, ठीक है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो सकती है और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, राइट? सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स, इजी टू अंडरस्टैंड, मिनिमल पेपर वर्क,
regulator, obviously EDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India is the regulator for this micro insurance products in India, right? टाइप्स पे चलते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन इंडिया? द फर्स्ट वन इज लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टर्म इंश्योरेंस आती है और इंडोमेंट प्लान्स आती है. इसके अलावा जो भी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, एसेट्स इंश्योरेंस हो गई, राइट, लाइफ स्टॉक्स इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सारी जो है इसके अंदर आएगी. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आएंगी, राइट. Next is our purpose. What is the purpose and importance of this micro insurance in India? It provides social security. It provides risk coverage to the vulnerable sections of India, vulnerable groups of India, right? Second is poverty alleviation. It reduces poverty. reduces impact of unforeseen event. जैसे डेथ हो जाती है अचानक से, इलनेस और क्रॉप फेलियर, तो उसमें जो है पैसा अचानक से वल्नरेबल सेक्शंस के द्वारा अगर ज़्यादा खर्च किया जाए तो ऐसी वो बैकवर्ड है, तो वो और काफ़ी पीछे चले जाएंगे अपने लाइफ स्पैन में, राइट. सो दैट्स वाई इट एलिवेटेड एलिवेशन, सो इट एलिवेटेड poverty, right. Next is financial inclusion. This is the main goal of this particular micro insurance policy in India, that is financial inclusion. Brings insurance within reach of the informal sector. Informal sector तक इंश्योरेंस की जो नीड्स है, इंश्योरेंस की जो फीचर्स है उसे पहुंचाई जाती है. रेजिलियंस हेल्प्स फैमिलीज रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक शॉक्स. इकोनॉमिक शॉक्स जैसे कि डेथ, अचानक से कोई ऐसे मेंबर्स की डेथ हो जाना जो कि ओनली सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द फैमिली, राइट. सो वैसे ही वो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और इस तरह की अगर इवेंट्स होती है तो वो काफ़ी पीछे चला जाएंगे. तो इससे जो है फैमिलीज को रिकवर करने में ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट रेगुलेटरी सपोर्ट. एडाई रेगुलेशन प्रमोट माइक्रो इंश्योरेंस सपोर्टेड थ्रू स्कीम्स लाइक, कुछ स्कीम्स है जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राइट. दीज आर द स्कीम्स सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट. माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स, ये क्या होती है? ये बेसिकली इंडिविजुअल और ग्रुप होती है जो कि इंश्योरेंस दिस माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को टू द सोसाइटी, मतलब टू द वल्नरेबल्स ग्रुप तक पहुंचाती है, राइट. दीज आर द इंश्योरेंस कैरियर्स, राइट. द वन हु कैरीज द इंश्योरेंस टू द वल्नरेबल ग्रुप्स और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. A micro insurance agent is an individual or institution authorized by an insurer, usually a life or general insurance company, to distribute micro insurance product. माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है. A small ticket insurance policies tailored to low income groups, especially in semi-urban and rural areas, right. Regulatory framework देख लेते हैं. As far as this micro insurance agent is concerned, गवर्निंग अथॉरिटी जो है, एज यू ऑल नो, एडाई द इंश्योरेंस रेगुलेटर इन इंडिया, राइट. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. रेलिवेंट रेगुलेशन एडाई माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशन 2015 एक्ट के अंडर जो है एडाई रेगुलेट्स दिस माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स, राइट, हु कैन बी अपॉइंटेड एज माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट. माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स कौन कौन अपॉइंट किए जा सकते हैं? एज पर एडाई गाइडलाइंस द फॉलोइंग एंटिटीज कैन बी अपॉइंटेड. NGOs, दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है, रीजनल रूरल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रामीण बैंक, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और इंडिविजुअल, राइट. दिस कुड बी एनी वन. नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. क्या होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम एन माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट इन इंडिया? मिनिमम 18 years of age, should have completed एडाई मैंडेटेड ट्रेनिंग. टिपिकली 25 आवर्स की जो ट्रेनिंग होती है, राइट, एडाई की, वो कंप्लीट होनी चाहिए. मस्ट पास द माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट सर्टिफिकेशन एग्जाम. इस ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम होती है, उसे वो पास करना चाहिए. Must not be disqualified person under section 42 of the Insurance Act 1938, right. The person should not be disqualified under the section 42 of
Insurance Act 1938, right? So these questions could be asked in your objective एग्जाम्स एज वेल, राइट। और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी पूछी जा सकती है, इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी क्राइटेरिया, तो इसलिए ये टॉपिक को डिटेल में कवर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रोल एंड फंक्शंस पे आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाइक हेल्थ, एसेट, लाइफ स्टॉक, राइट, ETC। कलेक्ट प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ में जो है वो प्रीमियम कलेक्ट करती है घर टू घर, डोर टू डोर जाके, राइट। असिस्ट इन क्लेम डॉक्यूमेंटेशन एंड सेटलमेंट, क्लेम करने में और उनकी सेटलमेंट करने में ये हेल्प करती है, राइट। These are basically the mediators who play a third party role on behalf of the company, right? Create awareness, awareness भी create करती है among the groups और the societies and educate rural customers, right? Policy servicing and grievance support, policy servicing को policy की regarding service भी देती है। अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो वो उनसे पूछ सकता है, अगर किसी को कोई भी किसी तरह की भी क्वेरीज है तो वो उससे जाके सॉर्ट आउट कर सकता है, राइट। कमीशन, कमीशन जो कैप बाय एडाई, मतलब एडाई के द्वारा जो फिक्स की गई है वो कमीशन कितनी है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में मैक्स 10% ऑफ द प्रीमियम, प्रीमियम की 10% तक आप जो है कमीशन ले सकते हैं, राइट। दैट इज द कैप वैल्यू बाय सेट बाय एडाई, राइट। हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस के केस में अप टू 15% तक डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, राइट। अपॉइंटमेंट एंड रिन्यूअल प्रोसेस, अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है माइक्रो एजेंट्स की, माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स की, और किस तरह से रिन्यूअल होती है, राइट। So agreement signed between the insurance and the agent, insurer, that is the insurance company. Validity of license is 3 years and it's renewable, मतलब 3 साल के लिए वैलिड होती है, बाकी बाद में उसको रिन्यू कराया जा सकता है, राइट। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन बाय द इंश्योरर, रेगुलरली जो है मॉनिटर की जाती है और ऑब्लिगेशन सेट की जाती है बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द micro insurance agents. Clear? Next is the restriction. What are the restrictions? A micro insurance agent can tie with only one life insurance and one general insurance. एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही वो टाई अप कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन, राइट। मस्ट नॉट ऑपरेट आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन डिफाइंड इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अंदर जितने भी ज्यूरिडिक्शंस है उसके बाहर कोई भी ऑपरेशंस वो कंडक्ट नहीं कर सकता है। कैन नॉट सेल नॉन माइक्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है, नॉन माइक्रो प्रोडक्ट्स और ट्रेडिशनल प्लान्स वो सेल नहीं कर सकता है। दीज आर द ऑब्लिगेशंस, right। Next is act as a bridge between the insurance companies and the rural population. It acts as a bridge between the insurance companies and the rural population. Supports financial resilience in low income households. Encourages risk mitigation for small businesses and farmers, right। These are the restrictions set to the micro insurance agents in India, right। These are some of the schemes, माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स इन इंडिया, जिसके बारे में हम लोग थ्रोली देखते हैं एक बार। पहला जो है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति लाइफ बीमा योजना, PMJJBY, दैट दिस इज अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। टारगेट ग्रुप इज 80 to 15 years, 80 to 50 years विथ अ बैंक अकाउंट, राइट। और प्रीमियम काफी कम है इसकी, देख सकते हैं आप, 330 पर एनम। दैट्स वाई दिस इज अ स्कीम रिगार्डिंग माइक्रो इंश्योरेंस, राइट। माइक्रो इंश्योरेंस कवरेज जो है 2 लाख ऑन डेथ, 2 लाख की कवरेज मिलती है ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी, राइट। मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया सो फार, राइट। अभी तक की सबसे सक्सेसफुल स्कीम इंडिया की यही है, दैट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्लियर? नेक्स्ट इज आवर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस का, राइट, एक्सीडेंट रिलेटेड इंश्योरेंस। दिस आर रूरल अर्बन लो इनकम इंडिविजुअल, इनकी टारगेट ग्रुप कौन सी है, रूरल इनकम
रूरल और सेमी अर्बन लो इनकम इंडिविजुअल, राइट, 20 पर एनम, 20 पर एनम। जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम है, दैट इज 20 रुपीज़ पर एनम। 2 लाख ऑन एक्सीडेंटल डेथ, फुल डिसेबिलिटी हो या फिर एक्सीडेंटल डेथ के सिचुएशन में जो है नॉमिनी को 2 लाख तक दिए जाएंगे, एंड 1 लाख टू द पार्शियल डिसेबिलिटी। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, तो उस केस में जो है 1 लाख दी जाएंगी। कवर्स 25 प्लस करोड़ पीपल, मतलब 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक कवर कर चुकी है। नेक्स्ट इज यशस्वनी कोऑपरेटिव फार्मर्स हेल्थ scheme. This is health micro insurance, right? Health related micro insurance scheme in India. The target groups are farmers and cooperative society members, right? And the premium is 250 to 1000 per annum. It varies to the farmers or person to person, right? एंड द कवरेज इज सर्जिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स, राइट्स। अगर किसी को सर्जरीज होती या फिर हॉस्पिटल में वो एडमिट होते तो उस केस में उन्हें बेनिफिट दी जाएगी, राइट। दिस इज स्कीम रिलेटेड टू हेल्थ माइक्रो इंश्योरेंस। पायनियर इन कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ माइक्रो इंश्योरेंस, राइट, दिस इज द मेन फीचर्स। Next is our Rashtriya Swasthya Bima Yojana, that is RSBY. This is basically a health insurance, right? And the target group is below poverty line families, BPL families. जो families poverty line के नीचे है, ये उनको टारगेट करके बनाई गई स्कीम है, right? Government funded, this is completely government funded. 30,000 per family, now merged with आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो कि सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज स्कीम है, उसके अंडर इस स्कीम को ले लिया गया है, जिसके अंडर 30,000 पर फैमिली को दिया जाना है, राइट, 30,000 पर फैमिली। रीच 3.6 करोड़ फैमिलीज टिल डेट। LIC जीवन मंगल, LIC की एक जीवन मंगल स्कीम है, उसके ये बेसिकली एक टर्म लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है, राइट। दिस इज रिलेटेड टू life insurance, right? This is basically for the unorganized sectors workers, basically gig workers, right? Some gig workers, flexible, single, regular, right? It depends whether this is single or regular. And what is the amount that has been provided under this scheme? The sum assured up to 50,000, 50,000 तक की राशि जो है प्रोवाइड की जाएगी। एंड LIC is dedicated micro product for informal workers, right? Informal workers. This scheme is basically for the informal workers. And that's it for the topic. We have covered each and every part of this topic, that is micro insurance, its ADI regulation, micro insurance scheme and micro insurance agents as well, right? So hope you guys like the video. If you like the video, please like and subscribe our channel. Please share this video and follow us on Telegram and Instagram as well for daily updates. Thank you so much.